Yeah, good morning, everyone. So, in the last class, I did talk about the problems based on definite integrals. There are certain properties of definite integrals which make the questions much simpler and easier. So, let's start with understanding what are those properties of definite integral. Everyone, please focus on the screen. So, the properties goes like this: P naught, the first property, a to b f of x is equal to a to b f of t ft dt, means variable name hardly matters. So even if it is in terms of x or is it in terms of y, it doesn't make a difference. For example, say for p naught example I'm taking, say you are given with a question say 0 to pi 1 upon 1 plus sine x. So this answer will be same as 0 to pi 1 upon 1 plus say sine y dy. So variable immaterial. The both answer will be same. Second property is a to b f of x dx is minus of b to a fx dx. So for P1, simply what does that mean? Let's say I have the integral 0 to pi by 2 sine square x, right? So this will be same as minus of pi by 2 to 0. So in limits will interchange their places and the negative sign would be there. And by default, this is very easy to understand. If the limits are same, that is P1 के अंदर ही क्या बताया है, मान लो लिमिट है क्वेश्चन की 0 सॉरी मान लो 2 to 2 x square plus 1. So if upper and lower limits are same, directly the answer will be always 0. Focus on third P2 property. Generally, this type of property is going to be used when we are given with the modulus type of a function. So for P2, understand this. Let's say you are given with a to b fx dx. So from a to b, and there is a point say c somewhere, not always the middle point, anywhere there is a point c, then we say instead a to b integrate, it is same as a to c integrate कर दो plus c to b integrate कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है -1 से लेकर 4 तक mod of x minus 2. So this will be actually same as -1 to 2 इंटीग्रेट करो और प्लस 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करो. अब एक्चुअल में यहां पर फंक्शन आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 और यहां पर आएगा x minus 2. How to decide about this, that we will learn after few minutes. But the basic idea goes like this only. There is a method, we calculated its critical point, equated this linear factor to 0. It gives me the value of x as 2. So 2 is a point where my function is changing its behavior. तो इसीलिए 2 के ऊपर स्प्लिट दिखा दिया फ्रॉम -1 से 4 तक. उसके बीच में कहीं पर पॉइंट 2 रहा होगा, वहां पर ये स्प्लिट हो जाएगा. कंसीडर P3. नाउ दिस टाइप P3 जो है इसकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम से ही समझ आएगी. क्या कहा गया है? A to B fx dx is this. So if you are given with a question say pi by 4 to pi by 2 of say sine x, though it is not required to apply this property in this question because I can integrate it directly, but let us understand okay, what does this property says actually. So that will become same as sine of a means pi by 4 plus b which is pi by 2
This is A, lower limit. This is B, upper limit. And then minus x. So value of both of these limits will be, both integrals will be the same. And most important property is our P4. In most of the question, you will see this property is actually being applied. 0 to a fx, 0 to a fx dx is 0 to a f of a minus x dx. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मान लीजिए 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन से साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स. So this will be same as 0 to a, this is 0 to a, and replace x by a minus x. x by a minus x का मतलब x की जगह सिर्फ यहां फंक्शन में π/2 माइनस x कर दीजिए फंक्शन में. So here is the function, and so dx will remain as it is. Or finally, if you note carefully, sine 90 minus theta will make numerator as cos cube, and it will become cos cube x plus sine cube x dx. So we do not observe any specific change to what has happened, but this has simplified the question to a large extent. So this limit's value will be same as this limit's value. So as of now, please go through the properties, understand these properties. We'll very soon take the problems based on them. Further properties P5. Generally, we do not use this property P5, and the application of this in the form of P6 is used. So let me directly focus on property P6. It says 0 to 2a. 0 to 2a fx dx. This becomes 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is f of x, and the value of this integral will directly become 0 if f of 2a minus x is minus of fx. So depending on which type of condition, whether the function is satisfying this condition or this condition, we have the following two possibilities. But remember, it is not always the case that one of the condition must be satisfied. It is possible that the function do not satisfy either of these conditions also. So in that case, of course, the property will not be applicable. And the last, and again, very simple property, but very important, minus a to a fx dx. This is 2 times 0 to a fx dx if f of minus x is f of x. That is, f is even function. This is the definition of the even function. There are many ways how we can distinguish or differentiate between the functions, various types of functions. जैसे 1 1 on 2 bijective, we already did talk about that. Similarly, यहाँ पर अब बात होती है in terms of even and odd. So if the function is even, then integral will become 2 times 0 to a, and the answer is 0 simply if f of minus x is minus of fx. That is, if f is the
odd function. So generally, in a one marker situation, let me quickly take one question. Say you are given with the integral minus pi by 4 to pi by 4, and the function is sine power 5x. Remember, if there would not have been the limits, it is a very calculative question. But now if I observe carefully, let me consider the function as sine power 5x. Replace x by minus x. To check even या odd, that's the only way. x की जगह minus x. और साइन ऑफ माइनस आ रहा है विद ऑड पावर, तो माइनस बाहर आ जाएगा. सो व्हाट आई एम गेटिंग, f of minus x is minus of fx. This condition holds true, that is f is odd function. और अगर f odd function है, डायरेक्ट आंसर आ गया इंटीग्रल का, दैट दिस इज 0. So understanding of the properties very important. And the identify मैंने कैसे करा, simply यहां माइनस ए टू ए गया है, तो माइनस ए टू ए सेम वैल्यू है, जस्ट नेगेटिव साइन का डिफरेंस था. तो माइनस ए टू ए दिखा, देन आई विल थिंक अबाउट इवन एंड ऑड ओनली. Everyone, please mark your attendance. Yes, quickly mark your attendance. Let us consider a few questions now based on the properties. It is possible that even you can solve some of the questions without applying the properties. But if the properties are applicable, of course, with practice and by simple identification, you will get to know about this. And once it is realized that the property is applicable, you should use that, because that is going to make the question much easier. So when I look at this question, let I is minus pi by 4 to pi by 4 sine square x. So here, which property one should apply? Check this out. This is minus a to a वाली property, देखते ही पता चल रहा है. So for that, I need to know whether my function is even or odd. So here it is very simple. Even there is no need to simplify this. Even power है, चाहे ये आंसर नेगेटिव भी आता, but because of the even power, it will become the sine square x only. Means f of minus x is f of x, that f is even function. And soon I realized कि f अगर even function है, so what was the property? Even function के केस में ये था आंसर. Everyone, what does that mean? Integral will become minus a to a की जगह 2 times 0 to a हो जाएगा. 2 times 0 to a and sine square x. Now you can easily integrate this. अब ये आपका क्वेश्चन बन गया फाइनाइट इनडेफिनेट इंटीग्रल का. इसे करने का यही मेथड सीखा हुआ है. जस्ट अप्लाई दिस फार्मूला. साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया. एंड व्हेन आई इंटीग्रेट दिस, this is a simple integration and followed by
अपर माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले π/4 रख दिया, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रख दिया, तो साइन 0 तो 0 हो गया, नेक्स्ट एक्सप्रेशन तो कैंसल ही हो गया, साइन π/2 1 होता है, योर रिक्वायर्ड आंसर। Any doubt to anyone? Check out this question. I'm waiting for your answer. So what's the answer? This is a simple observation. माइनस ए टू ए की बात करी गई है, so therefore I will consider कि whether this is even or odd function. Replace x by minus x. याद रखिए साइन ऑफ माइनस थीटा तो साइन होता है, माइनस साइन थीटा, बट कॉस में माइनस अंदर ही कंज्यूम हो गया, so this is minus of fx, that is f is odd function. What's the answer? If we have identified that मेरा फंक्शन ये odd है, माइनस ए टू ए odd function, Zero. the answer is simply 0. तो अब अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता है, तब तो मैं कितना इसको लंबा सोच लग जाऊं सिंप्लीफाई करने में, बट अदरवाइज दिस इज योर सिंपल 1 और 2 मार्कर मैक्सिमम। अब करने को आप ऑड पावर को साइन 4 इंटू साइन लिख दो, साइन 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर करिए, सब्स्टिट्यूशन करिए एंड सॉल्व द इंटीग्रल, अपर माइनस लोअर लिमिट, फाइनली आंसर 0 ही आएगा। तो कितना भी आप इसको 2 पेजर बना सकते थे पेजेस में आंसर इसका, बट इफ द प्रॉपर्टी इज क्लियर, जस्ट इन 2 स्टेप्स यू कैन ऑलवेज आंसर। और हर बार ये इवन ऑड दिखाने की जरूरत नहीं है इफ इट इज से 1 मार्कर, राइट। 1 मार्कर में तो सिंपली आपसे करेक्ट आंसर एक्सपेक्टेड है, तो इफ इट वुड हैव बीन अ 1 मार्कर, डायरेक्ट आंसर 0। दैट रीजन इन ब्रैकेट यू कैन से माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन वाला है। यस, चेक आउट दिस क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि हम प्रॉपर्टीज को ही अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। सो विच प्रॉपर्टी यू थिंक वी शुड अप्लाई? सर P4। यस, आप चेक करिए, जब हमने बात करी थी यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी P4, 0 टू ए दिखा, तो f ऑफ dx इज 0 टू f ऑफ a माइनस एक्स। व्हाट डज दैट मीन? यहां 0 टू a ही दिख रहा है, तो 0 टू a और x की जगह लिख दिया a माइनस एक्स। वैसे इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन और इनके आंसर तक हमें याद हो जाते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर चलिए, क्योंकि अब सब्जेक्टिव हैं चीजें। ओ सॉरी, ये π/2 आएगा। सो लेट मी सॉल्व इट, विच इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। न्यूमरेटर विल बिकम कॉस साइन 90 माइनस थीटा की वजह से। व्हाट इज द पर्पस? इसे सेकंड कह दिया। इक्वेशन नंबर 2, ये भी मेरा इंटीग्रल आई है, एडिंग 1 एंड 2।
चेक करिए क्या हो जाएगा। एल एच एस ऐड हुए, 2i आ जाएगा, i+i। अब RHS में इफ आई नोट केयरफुली, दोनों के एलसीएम सेम है, तो दोनों के एलसीएम सेम है, बस लिखने का ऑर्डर ही तो चेंज हुआ था। और इफ अगेन आई नोट केयरफुली, जब सेम एलसीएम आएगा, आप इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्वेश्चन सिर्फ ये बच गया, सेम आ चुका है, तो ये बचा 0 to π/2, 1 आ गया, ये दोनों तो आपस में कैंसल, सिंपली 1 आ जाएगा। सो आई होप नाउ द रोल ऑफ प्रॉपर्टी इज क्लियर। 1 का इंटीग्रल x हो गया अंडर दिस लिमिट, और 2i इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 ही हो गया। I इज इक्वल टू π/4। विद प्रैक्टिस ये आंसर भी याद हो जाते हैं कि ये हमेशा ऐसा ही आने वाला है। इवन मान लीजिए मैं अगर आपके पास क्वेश्चन रख देता से 0 से π/2 cos पावर 10x, बट यहां सिमिट्री ऑफ कोर्स देखो मैं वही मेंटेन कर रहा हूं। सो द आंसर वुड बी क्लियरली, वंस यू सॉल्व इट यूजिंग द अबव मेथड, ऑलवेज यू कैन चेक π/4। और यहां कहीं कंडीशन नहीं है कि n जो है पावर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इवन इफ पावर इज से फ्रैक्शन, लाइकवाइज 7/2 ले लिया मान लीजिए, बट सिमिट्री को ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन की, लाइक दिस, अगेन द आंसर इज π/4। सेम अप्रोच विल बी फॉलोड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और लास्ट में चेक कर लोगे कि आंसर यही आ रहा है। एनी सजेशन हाउ टू बिगिन? थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए किस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, ये लिमिट्स को देखकर या फंक्शन को देखकर। एक काम करते हैं, पहले साइन कॉस में तो चेंज कर ही दूं। क्या मतलब, tan को लिख दिया sin/cos, व्हेन आई टेक द एलसीएम, चेक कर लीजिए एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन ये बन गया है। इसे मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं। अब यहां 0 to a तो नहीं लग सकता, दैट इज फॉर श्योर। 0 to a तो नहीं है, बट A to B तो है, ए से लेकर बी तक में गया है। तो डू वी हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी A to B के लिए जो सिर्फ जा रही हो? लुक एट प्रॉपर्टी नंबर P3। वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी हेयर। क्यों ये करेंगे, देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप से क्लियर हो जाएगा। सो आई विल बिकम, ये A है और ये B है, तो फंक्शन में x की जगह लिख दिया A+B-x, यही तो प्रॉपर्टी थी। और डिवाइडेड बाय, यही ऐसे आ जाएगा यहां पर, cos ऑफ A+B-x, और प्लस में साइन की भी ऐसी वाली टर्म A+B-x। नोट केयरफुली, ये कितना आ गया,
रूट में cos 90 माइनस एक्स, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 2 हो गया, मतलब 90। तो cos 90 माइनस एक्स कितना होता है? साइन। Similarly, this would be sine and this would become cos. Let me call this as equation number 2. क्या करें अब? Anyone? Add 1, 2. Yes, good. Simple identification देखिए अब आ चुका है. When I add 1 and 2, 2i हो जाएगा एक तो, 2i, and this will be पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 में. आइडिया लग चुका है? आप इसे और इसे ऐड कर रहे हो, सेम एलसीएम आ जाएगा. तो सेम एलसीएम, और उसका मतलब अगर यहां आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर भी तो सेम आ रहा है. सो डेफिनेटली इट विल गेट कैंसल्ड आउट, और 2i विल बिकम पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 1 dx. 1 का इंटीग्रल x हो गया अंडर अपर माइनस लोअर लिमिट. सिंप्लीफाई, आंसर इज पाई बाय 12. वो आप चेक कर सकते हैं इजीली. तो प्रैक्टिस करोगे तभी प्रॉपर्टीज का रोल समझना आना शुरू होगा कि वाई प्रॉपर्टीज एंड देन विच प्रॉपर्टी टू अप्लाई. So I'm sure the idea is now clear when I talk about NCERT 7.11. फर्स्ट तो डायरेक्ट है आपका, 0 to a प्रॉपर्टी लगा दो, और इसे मैं डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकता हूं विदाउट थिंकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑल्सो. दिस कैन बी सॉल्व, और प्रॉपर्टी से थोड़ा जल्दी हो जाएगा. कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड? एनीवन? सेकेंड और थर्ड का आंसर सेम है पहली बात, और अभी कर चुके हैं हम. पाई बाय 4. चेक दिस आउट, ये बताया था. गुड, दैट इज पाई बाय 4 ओनली. तो आंसर सही है, सेकेंड एंड थर्ड दोनों का आने वाला है पाई बाय 4. प्रेजेंटेशन बस थोड़ा ध्यान से चेक करके देखना इन योर होमवर्क. यस, ठीक है यश. दिस फोर्थ इज अगेन पाई बाय 4. ये सिंपल है. अब देखते ही पता चल रहा है फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन सिमिलर जाने वाले हैं. तो लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5, -5 to 5 मॉड. और याद करिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और साथ में कहा है कि वो अब मॉड के समय में हम उसे जनरली अप्लाई करने वाले हैं. ए टू बी जाना है तो आप ए टू सी चले जाओ, और फिर सी टू फाइनली बी चले जाओ. So this is the property which we are going to use here. But कैसे? तो उसके लिए आप सोचिए, लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा था अंदर, मॉड के अंदर जो भी है उसे 0 कर दिया, x आ गया -2. तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही फ्रेम करे जाते हैं. ये -5 था, -5 से 5 तक जाना है, और कहीं पर बीच में आ गया -2. मीन्स मेरा इंटीग्रल ऑफ स्प्लिट हो गया -5 से -2 में, और फिर -2 से लेकर 5 तक में. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब बता रहा हूं प्लीज सब ध्यान से उसे समझिए. मुझे यहां पर फंक्शन सोचना है, फर्स्ट इंटीग्रल में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा. अब मॉड हटाना चाहता हूं, तो सोचिए जरा, एनी पॉइंट इन दिस इंटरवल -5 से -2 के बीच में, से -3,
तो अगर मैं -3 को पुट करता हूं यहां फंक्शन में, आंसर नेगेटिव आता है। वो तो मॉड की वजह से फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा, बट अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आ रही। नेगेटिव वैल्यू का मतलब यहां फंक्शन माइनस ऑफ एक्स भी पॉइंट ले लीजिए। तो -2 to 5 के बीच में इफ आई चूज एनी पॉइंट, लेट्स से क्या ले सकते हैं, x को ले लिया 0, -2 से 5 के बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो 0 + 2, आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है इनसाइड द मॉड। पॉजिटिव का मतलब फंक्शन सेम ही रहेगा। अगर ये लिखा गया, इसके बाद तो अब ये डायरेक्ट आपका है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। क्या मतलब, ये माइनस ऑफ, ये आ गया x² / 2 + 2x, इसको इंटीग्रेट कर दिया अंडर द लिमिट दिस, प्लस इसका इंटीग्रल x² / 2 + 2x एंड अंडर द लिमिट -2 to 5. Of course, it is little bit calculative. Simplify, you will get your answer. So, 6th question clearly बिल्कुल ऐसा ही रहेगा for your homework. ये जो रैंडम पॉइंट पुट करके देखा है, अगर आप रिकॉल करें इन केस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स इन एओडी आल्सो वी यूज द सिमिलर concept. Yes. So, 7th question and 9th question. In homework, बस एक हिंट देता हूं, 0 to a वाली प्रॉपर्टी वो अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बिना आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट विथ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, you'll get your required answer. लास्ट क्वेश्चन अब जो करेंगे वो 8th है। एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 to π/4 log of 1 + tan x। 0 to a वाली ही प्रॉपर्टी लगानी है। 0 to a मतलब π/4 हो गया, तो x की जगह लिख दीजिए a - x, so that it will become 0 to π/4 log of 1 plus, सॉरी यहां पर tan था, ये log नहीं है, ये तो tan है ना यहां पर, तो ये कितना आ गया, tan a - b, which is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। और अगर आप ध्यान से देखें तो tan π/4 तो 1 हो गया, सो 1 minus tan x upon 1 plus tan x, और ये लॉग के अंदर है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, वो ये आ रहा है। मैंने एक स्टेप से स्किप किया है, वो डायरेक्टली पता चल रहा है। And if you note carefully, this is log a by b, which is log a minus log b। log a minus log b की प्रॉपर्टी लगा दिया। And if you now note carefully, log 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, and this is nothing but I only।
क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ऑब्जर्व, तो ये माइनस आई इधर आकर 2i दे देगा और x फ्रॉम 0 to π/4 सॉल्व कर लीजिए एंड पुट द लिमिट, सिंप्लीफाई, you will get your required answer। तो विद प्रैक्टिस तो कुछ ये भी याद हो जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, इसका आंसर π/8 log 2 है। एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना अपना होमवर्क में, थोड़ा सा जल्दी मैंने किया है लास्ट स्टेप में। सो विल स्टॉप टिल हियर एवरीवन। Chale, you all can leave the class. Ending the class now. Thank you very much.